Hi, Dr. Mina. Hi, Tanya. How are you? I'm good. How are you? Very well. Should we start? I think we have. Okay. Assalamu alaikum, everyone. And thank you so much for joining us today. My name is Hafsa Server. I work as a senior research coordinator at IRD Pakistan, and I'm also the co-chair of the uh, Crisis and Emergency Response Working Group under the Pakistan Mental Health Coalition. I'm so happy to welcome such a diverse group to the session today. I think we have first responders, paramedics, healthcare professionals, and students. And we're all gathered around a topic that I genuinely believe is long overdue for this kind of a focused, dedicated conversation. So I'll just briefly go over some of the introductions before we move into the main topic. So the Pakistan Mental Health Coalition is a network of organizations and individuals that are dedicated to supporting Pakistan's population that is affected by stress and mental health challenges. Our vision is to collaboratively promote a holistic and multi-sectoral approach to mental health in Pakistan. So we hold webinars and workshops throughout the year on different mental health awareness topics. And if anyone over here is interested in joining the PMHC, you can as a member through the link in the chat. Asra, if you haven't, please put the link in the chat. And then if you're a member, you can gain opportunities to participate in webinars and workshop sessions held throughout the year. You will also have access to coalition resources, and we will connect you to diverse stakeholders across Pakistan's mental health ecosystem. So the PMHC has different working groups under it, and the Crisis and Emergency Response Working Group was formed precisely because we recognize that mental health and emergency response are not two separate conversations. The people who show up first at a disaster, who work through mass casualty events, and who have to make decisions under the most acute pressures imaginable, they also carry an emotional weight that our systems have traditionally not even acknowledged, much less supported. So this working group exists to change that. And today's webinar is also just another step in that direction. We're also, sorry, is there, if everyone could just mute their mics. Thank you. We're also very grateful to have the support of our partner organizations today, SIEHS and SERS. Their teams actually live this reality every single day. So SIEHS is the Sindh Integrated Emergency and Health Services, and they respond to medical emergencies and public health crises across Sindh. SERS is the Sindh Emergency Rescue Service, and it is Sindh's dedicated rescue service and response to emergencies ranging from road accidents to floods. And they're available 24 hours a day on 1122. So I'm not sure if we have Dr. Abid Jalaluddin Sheikh on the call with us. If Dr. Abid, if you're here, could you please unmute your mic and let us know? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद साहब एक मीटिंग में अभी बिजी हैं अच्छा सही, तो वो हमें कब ज्वाइन करेंगे? आई विल लेट यू नो इन 30 मिनट्स Okay. So should we then move on to Adil? Okay, great. I'll just share a few quick notes before we begin. One thing that I do want to point out, I'm not sure if it's in the chat, we will be recording the session. So I hope everyone, if we have everyone's consent, please do let us know in the chat if there's any issues. And we will be putting this up on PMHC's YouTube channel after the fact. Hi, if you could, thank you. If everyone could just mute their mics so that we don't have distractions. Great. हमारे सेशन आज 4:30 तक चलेगा. हम लोग के पास एंड में क्वेश्चन और रिफ्लेक्शंस का भी टाइम होगा. So in the meantime, you can drop your questions in the chat. And if Adil thinks that any question needs to be addressed during the session, he will do so.
और जब हम लोग का सेशन क्लोज होगा तो फिर हम लोग एक शॉर्ट पोस्ट वेबिनार फॉर्म भी शेयर करेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए. सो प्लीज डू टेक अ फ्यू मिनट्स टू fill it out because your feedback shapes the work that we do in the future for everyone else. And so without further ado, we are very fortunate to have with us today a speaker whose research sits right at the heart of this conversation. Syed Adil Akhtar is a PhD candidate at the University of Tasmania, and his work explores emotional intelligence and trust building and disaster response. So, Adil, to begin, could you introduce yourself and tell us why emotional intelligence matters in crisis and emergency management? Ji, Assalamu alaikum everyone. Very, very warm welcome to all of you. I'm very happy to have such a diverse group of participants today. A little about myself. So, Adil मेरा नाम है. You can call me Adil. I am in the final year. In fact, मेरी PhD का सिर्फ thesis submit होना बाकी है. बाकी I'm pretty much done with my PhD. पाकिस्तान में और सूडान में और अफगानिस्तान में मेरा कोई 16 इयर्स का डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर रिस्पांस का एक्सपीरियंस है डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. उसके अलावा इमरजेंसी मैनेजमेंट में कोई 2 सालों से आई बीन वर्किंग एज अ लेक्चरर. रिसेंटली मैंने एज एसोसिएट लेक्चरर ज्वाइन कर लिया है अपनी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया को. और मेरी रिसर्च जो है उसमें मैंने ये देखा. सो ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत मेजर एंगल मेंटल वेलबींग है, लेकिन मेरी रिसर्च एक्चुअली देख रही थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को क्राइसिस में और डिजास्टर रिस्पांस में डिसीजन मेकिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए या एक बेहतर कोलैबोरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. क्योंकि वी नो ऑल टू वेल कि चाहे हमें ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस का सामना हो या हमें डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिस्पांस का सामना हो, हमें मल्टीपल एक्टर्स की एक्सपर्टीज उसके अंदर दरकार होती है. फॉर इंस्टेंस, अगर एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो हमें पुलिस की भी ज़रूरत है, हमें फायर सर्विसेज की भी ज़रूरत है, हमें पैरामेडिक्स की भी ज़रूरत है. इन सब की आपस में कोलैबोरेशन भी होनी है, इन सब ने डिसीजंस भी बनाने हैं, इन सब ने ट्रस्ट भी बिल्ड करना है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को उसके लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग. बट उसका एक बाय प्रोडक्ट, एक अनअवॉइडेबल वेरी नाइस टू हैव बाय प्रोडक्ट ये भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उसका मेंटल वेलबींग के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है. Okay. जी Thanks. हफ्सा एंड असरा. जी, तो आपने आज के लिए 2 कैरेक्टर्स बनाए हैं, अयान और हानिया. तो आप हमें थोड़ा सा इनके बारे में बता सकते हैं और आप इन्हें क्यों इस्तेमाल करेंगे इस वेबिनार में? एब्सोल्युटली. सो आज हमारे साथ इस वेबिनार में फिक्शनल तौर पे मौजूद हैं अयान और हानिया. आ, ये 2 कैरेक्टर्स हमें, हमारा जिस किस्म का पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप था उनको देखते हुए हमने इनको इंट्रोड्यूस किया है. अयान जो हैं एक रेस्क्यू रिस्पॉन्डर हैं जो कि किसी भी जो हमारा डिजास्टर का सीन होता है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या फायर्स हो या फ्लड इमरजेंसीज हो या हीट वेव हो, वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे वो डिसीजंस लेते हैं, वहाँ पे वो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. और हानिया जो हैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि काम कर रही हैं लोगों के साथ जो खुद इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं. उन्हें उन लोगों की बातें सुननी होती हैं, उन्होंने उन बातों को सुनते हुए कंपोज रहना होता है, दूसरों को सपोर्ट करना होता है. लेकिन इस सब से जो इमोशनल लेबर या जो इमोशनल लोड खुद उनके ऊपर क्रिएट होना है, उसको भी हानिया ने मैनेज करना होता है. तो आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसको एक प्रैक्टिकल एंगल देने के लिए या उसकी एप्लीकेशन को देखने के लिए हम एग्जांपल्स यूज करेंगे अयान की और हानिया की. Great, thank you. So before we talk about emotional intelligence, could you actually explain what an emotion is? तो कुछ लोग समझते हैं इमोशंस बस डिस्ट्रैक्शन होती है, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए. इज दैट ट्रू? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हफ्सा. और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा तो मुझे इस बात की खुशी है कि बिफोर यू आस्क्ड मी कि व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, आपने मुझसे ये पूछा है कि इमोशन क्या होता है. और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जिस तरह हम में से बहुत से लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में जब तक आप एलिमेंट्स को नहीं पढ़ते
उनके एटॉमिक मैसेस, उनके एटॉमिक नंबर्स नहीं पढ़ते, आप एलिमेंट्स के साथ, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ आप बखूबी वाकिफ नहीं होते, तब तक आप केमिस्ट्री को ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी एनालॉजी को अगर हम लेके आए इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस की डोमेन में, तो जब तक हम इमोशंस के साथ फेमिलियर नहीं होते, हमें इमोशंस का नहीं पता होता, हमें उनके सिग्नल्स का नहीं पता होता, हमें उनके एडेप्टिव फंक्शंस या मैल एडेप्टिव फंक्शंस, यानी हर इमोशन की जो कुछ अच्छे असरात हैं या जो बुरे असरात हम पे जो पड़ते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता होता, तब तक हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गैप्स जो हमें अपनी रिसर्च में नजर आया, हम रिसर्च टीम को, कि दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च तो बहुत है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी इसके ऊपर काम कर रही हैं, साइकोलॉजी का तो एक बड़ा डीप टॉपिक है। लेकिन जब हम एक क्रॉस कल्चरल या क्रॉस इंडस्ट्री एस्पेक्ट देखें या क्रॉस डिसिप्लिन एस्पेक्ट देखें, तो उसमें हमें ये नजर आया कि हर कोई इस लिंक को जोड़ने में लगा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से परफॉर्मेंस पे अच्छा असर पड़ता है या मेंटल वेलबींग पे अच्छा असर पड़ता है, मगर कोई मैकेनिज्म्स की बात नहीं कर रहा। तो हमने इसी गैप को पिक किया और हमने इस चीज पे बड़ा काम किया कि डिजास्टर रिस्पॉन्स या क्राइसिस मैनेजमेंट की डोमेन में इमोशंस क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रॉब्ली क्लॉस आर शेहरर का मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस 1960s में इंट्रोड्यूस किए थे दुनिया के अंदर। सॉरी, हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखते हैं और लेट्स सी के हमें क्या इससे पता चलता है। जब भी कोई इमोशनल एपिसोड होती है, हम एकेडमिक्स की दुनिया में लफ्ज इमोशन से ज्यादा इमोशनल एपिसोड यूज करते हैं, बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। एक इमोशनल एपिसोड में 5 कंपोनेंट्स होते हैं: उसका अप्रेजल, उसका सोमैटिक रिस्पॉन्स, मोटिवेशन, एक्सप्रेशन और फीलिंग। सुनने में बड़े ये लोडेड और डेंस और टेक्निकल लग रहे हैं, लेकिन अब जब हम वन बाय वन जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कोई इतनी तकनीकी बात है नहीं। सो अप्रेजल ये है कि जब हमारा कॉग्निटिव ब्रेन, जब हमारा सोचने समझने वाला दिमाग किसी भी इंसिडेंट को एनालाइज करता है, कोई भी चेंज आती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम उस चेंज को देखते हैं कि क्या हमारे वो मोटिव्स के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमारा उसके ऊपर कितना दायरा इख्तियार है, हमारा कंट्रोल पोटेंशियल क्या है, वो चेंज किसकी वजह से आया है, क्या वो हमारी वजह से आया है, सर्कमस्टेंशियल है या किसी और फर्द की वजह से आया है, और जो आउटकम इसकी आनी है उसकी सर्टेनिटी कितनी है। ये 5 डायमेंशंस हैं। इन बेसिस के ऊपर हमारा ब्रेन एक इमोशन डिसाइड करता है। उसके बाद आता है जी सोमैटिक रिस्पॉन्स या बॉडी रिस्पॉन्स। किसी भी इंसिडेंट को, जो भी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट हो हमारे मोटिव्स के लिए, जब वो वाकया हो जाता है तो उसके अंदर हमारा बॉडी रिस्पॉन्स या सोमैटिक रिस्पॉन्स चेंज होता है। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में कितना एड्रीनालीन है, कितना सेरोटोनिन है, कितना डोपामीन है, हमारे ब्रेन के केमिकल्स, हमारी ओवरऑल जो इंटरनल केमिस्ट्री है, बहुत इनसिग्निफिकेंट भी हो सकती है और बहुत सिवियरली सिग्निफिकेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग के वाकया कितना सिवियर है, जो भी वाकया हुआ है जिसकी नतीजे में इमोशनल एपिसोड इनिशिएट हो रही है। तीसरी है मोटिवेशन, मोटिवेशन टू टेक एक्शन, जिसको हम इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्स के अंदर हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है। अगर हम किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं या किसी को गले लगाना चाहते हैं या किसी को एक तमाचा मारना चाहते हैं या वहां से भागना चाहते हैं या चीखना चाहते हैं या ऊंची आवाज में बोलना चाहते हैं या इनडिफरेंट रहना चाहते हैं, ये सब जो मोटिवेशंस आती हैं एक्शन लेने की, इनको हम मोटिवेशन या इम्पल्स कहा करते हैं इमोशनल एपिसोड में। इसका चौथा कंपोनेंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमारे चेहरे के तासुरात हैं। अच्छा, बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की रिसर्च इसको फोकस किया करती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों के चेहरे पढ़ लिया करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मगर हमने अपनी रिसर्च में देखा कि ये बड़ा इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल तरीका है, क्योंकि क्रॉस कल्चरल बड़े डिफरेंसेस हैं।
हम जो चेहरे पे तासुरात लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल डिफरेंट तासुरात भी लाए जा सकते हैं, जापान में बिल्कुल डिफरेंट तासुरात लाए जा सकते हैं, बट बहरहाल कुछ यूनिवर्सल कॉमनैलिटीज भी हैं। अगर आप जॉय फील कर रहे हैं तो आप मुस्कुराएंगे, प्रिटी मच यूनिवर्सल है। इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर जो आप फ्राउन करते हैं गुस्से में, या स्माइल करते हैं, या खौफ का इजहार करते हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प कंपोनेंट जो इमोशन का है वो फीलिंग है, जो आपका ब्रेन फील करता है कि, या आप फील करते हैं कि मैं एक इमोशन से इस वक्त गुजर रहा हूं। अच्छा, हमने शायद ये सीखा है, या हम ये समझा करते हैं कि बेसिकली एक वाकया हुआ, हमारे थिंकिंग ब्रेन ने उसको एनालाइज किया और उसकी वजह से इमोशन आ रहा है। लेकिन हमने अपनी रिसर्च में ये देखा कि बेसिकली हमने अपनी रिसर्च में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च को रिव्यू किया और बड़ा क्रेडिबली ये देखा कि ऐसा है नहीं। दरमियान में सोमैटिक रिस्पॉन्स का एक ब्रिज है। सो बेसिकली जब एक वाकया होता है तो हम जिसको हम फीलिंग कह रहे हैं, वो समरी है हमारे सोमैटिक रिस्पॉन्स की। जब हमारा हार्ट रेट स्लाइटली एलिवेटेड होगा, जब हमारा डोपामीन स्लाइटली एलिवेटेड होगा, तो वो उसको, उस कलेक्टिव समरी को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा एज जॉय। जब हमारा डोपामीन नीचे जाएगा, कार्टिसोल ऊपर जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज होगा, एड्रेनालिन बढ़ जाएगा, तो इसको हमारा ब्रेन, इस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोमैटिक रिस्पॉन्सेस को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा एज फियर। So it is the summary of our somatic responses, not what the thinking brain has created or interpreted, but जो somatic responses की summary है, लेटेस्ट रिसर्च हमें ये बताती है कि उसको हम फीलिंग कहते हैं। अब अगर हम अयान की एग्जांपल ले लें, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है। अयान जो है, एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचे हैं जहां पे इस वक्त एक ब्लेजिंग फायर चल रही है, और उन्होंने देखा कि अभी तक ग्राउंड फ्लोर पे है, और फर्स्ट फ्लोर पे जाके, फर्स्ट फ्लोर छोड़ के सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ जो हैं, कुछ लोग जो हैं, कुछ रिहायशी जो हैं उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। अब अब जो है, एक और चैलेंज ये है कि ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। तो अयान का मोटिव ये है, हमने अप्रेजल में कहा था कि 5 डायमेंशंस होती हैं, और अयान का मोटिव ये है कि उन्होंने लोगों को बचाना है। एज अ फायर रिस्पॉन्डर आपका यही मोटिव होता है, राइट, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर। लेकिन जो वाकया हो रहा है वो मोटिव इनकंसिस्टेंट है। सीढ़ियों के ऊपर भी आग का मौजूद होना मोटिव इनकंसिस्टेंट है। कंट्रोल पोटेंशियल अयान का बहुत कम है, वो उसको खातिर खा तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोई इंटरवेंशन किए बगैर। एजेंसी जो है, यानी किसकी वजह से ये वाकया हुआ है, वो सर्कमस्टेंशियल है। एटलीस्ट हमें ये नहीं पता कि अगर किसी ने आग लगाई है तो एक अलग बात है, लेकिन अपेरेंटली सर्कमस्टेंशियल है। और सर्टेनिटी जो है वो अनसर्टन है। तो ये सारा अप्रेजल अयान का ब्रेन पिक कर रहा है। अब सोमैटिक रिस्पॉन्स अयान को क्या आएगा? सोमैटिक रिस्पॉन्स ये आ सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर एलिवेट होगा, उनका कार्टिसोल स्लाइटली एलिवेट होगा, उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है। उनकी इम्पल्स ये होगी, अगर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मगर उनकी पोटेंशियली इम्पल्स ये हो सकती है कि वो भाग के जाए और उसी जलती हुई सीढ़ियों से गुजरने की कोशिश करें। उनके चेहरे पे जो तासुरात होंगे, जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, वो कंसर्न के हो सकते हैं। और उनकी फीलिंग जो है वो वरिड होगी, जो उनकी बॉडी समराइज कर रही है उनके सारे सोमैटिक रिस्पॉन्स को। तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स मिलके एक इमोशन या इमोशनल एपिसोड को क्रिएट करते हैं। आई थिंक हमारे पास इसके लिए एक छोटा सा पॉप क्विज भी है। असरा या हफ्सा, अगर आप लोग उसको रन करना चाहें, लेट्स सी के पार्टिसिपेंट्स ने किस हद तक इसको ग्रास्प किया है। आई होप सबके पास पॉपअप हो गया होगा, सो प्लीज पुट इन योर आंसर और फिर हमारे पास एक समरी आ जाएगी।
Sir, have we collected responses from most people? Yeah? Yes, so 90% of people voted for B, which is feeling is the conscious experience of a broader emotional process. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फीलिंग एग्जैक्टली यही है कि जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर सर से पांव तक जो कैफियत चल रही हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनकी समरी जो अब हमारे ब्रेन के पास पहुंच रही है, तो वो हमारी फीलिंग बना रही है, जो कि चंद सेकंड से, चंद घंटों से, चंद दिनों तक, चंद महीनों तक कहीं भी वो मुहित हो सकती है, कहीं भी वो लाई कर सकती है इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो अदील, आपने फिर अभी बात की कि हम लोग जो अप्रेजल कंपोनेंट होता है इमोशंस का, उससे हम लोग एक सिचुएशन को समझ रहे होते हैं, उसे रीड कर रहे होते हैं। तो कोई तरीका है कि हम लोग समझ सकें कि कोई इमोशन हम या कोई और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्रेजल? Thank you, Hafsa. That is a terrific question. I think जो दुनिया का सबसे रिलायबल तरीका मेरे ओपिनियन में पॉसिबल ये है कि अगर हम किसी पार्टिसिपेंट को, किसी सब्जेक्ट को ब्लड प्रेशर कफ भी लगा दें, कोई उनका हार्ट रेट मॉनिटर करने की डिवाइस भी लगा दें, और उनकी बॉडी में उनका ब्लड टेस्ट कॉन्टिन्यूसली लेते रहें, और जो केमिकल्स हैं, एड्रीनालीन है या कार्टिसोल है, उनके लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, तो प्रोबेबली द मोस्ट रिलायबल मेथड वुड बी दैट। ये सबसे रिलायबल होगा। मगर रियल लाइफ सिनेरियोज में ये पॉसिबल नहीं है। हम हर वक्त ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते, हम हर वक्त ब्लड प्रेशर कफ लगा के नहीं घूम सकते। तो इसके अंदर जो मैंने अपनी रिसर्च में जो तरीका इस्तेमाल किया, और मैं यहाँ इस मौके का फायदा उठाते हुए ये भी बताता चलूँ कि मेरी रिसर्च फोकस थी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स में। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स में मैंने 3 इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ काम किया। मैंने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की वो स्टेट है जहाँ पे सिडनी है, तो मैंने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के साथ काम किया, जिनकी एक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, कोई 150 लोगों पे कंप्राइज करती है। इसी तरह क्वींसलैंड एक दूसरा सूबा है ऑस्ट्रेलिया का, उनकी क्वींसलैंड फायर डिपार्टमेंट के साथ काम किया, और उनकी भी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ। और न्यूजीलैंड में मैंने काम किया फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड के साथ, और इनकी भी कोई 150 लोगों की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है। ये टीम वो है जो डिप्लॉय होती है जब कोई इंटरनेशनल क्राइसिस होता है, जिस तरह टर्की का 2023 का अर्थक्वेक था, या अभी वेनेजुएला का अर्थक्वेक था। तो जो इंटरनेशनल टीमें सर्च एंड रेस्क्यू में जाती हैं, कोलैप्स बिल्डिंग्स में सर्वाइवर्स को तलाश करती हैं, ये वो टीम्स होती हैं। इसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, रेस्क्यूअर्स भी होते हैं, K9 यानी जो सर्च डॉग्स वाले यूनिट्स हैं वो भी होते हैं। इसके अंदर लॉजिस्टिक्स के लोग भी होते हैं, ऑफ कोर्स इसके अंदर मेडिकल के लोग भी, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी होते हैं। तो बड़ी मल्टी फंक्शनल किस्म की टीम है। और हमने जो तरीका इस्तेमाल किया कि हमने जब अपनी ऑब्जर्वेशंस की, इनको एक्शन में देखा, तो हम ये देखते थे कि हम ये जो 5 डायमेंशंस की हमने बात की, हम इनको मॉनिटर करते थे कि कौन सा वाकया इन 5 डायमेंशंस को कैसे चेंज कर रहा है, जिसमें मैंने हमने बात बताया कि अप्रेजल के जो कंपोनेंट्स हैं। अभी अभी मैं आपको उसका चार्ट भी दिखाता हूँ। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा रोजमैन्स मॉडल ऑफ इमोशन एलिसाइटेशन। बड़ा टेक्निकल सा टाइटल है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ सेकेंड। जी, आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी। ओके। सो 1983 में एक्चुअली रोजमैन ने, जो कि एक साइकोलॉजी की डोमेन में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एक रोजमैन मॉडल ऑफ इमोशन एलिसाइटेशन बनाया था। उनका जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है 2013 का, हमने उसको अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट किया, जिसके अंदर वो काफ़ी सारी इटरेशंस के बाद रिविजन्स करके यहाँ तक पहुँचे हैं।
उन्होंने ये बताया था कि इन डायमेंशंस को कैसे इंटरप्रेट करके आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इमोशन एलिसिट या मैनिफेस्ट या रोनुमा हुआ है। यानी इमोशंस की रोनुमाई का रोजमैन का मॉडल जो है हमारा, वो रोजमैन मॉडल ऑफ इमोशन एलिसाइटेशन है। अब इस चार्ट को देख के बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बेसिकली वही जो डायमेंशंस की हमने बात की थी उनका हमने एक टेबल बना लिया है और डिफरेंट कंडीशंस को एक साथ एग्जिस्ट करवा रहे हैं। अभी जब हम इसके थ्रू वर्कआउट करेंगे तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जब भी कोई वाकया होता है तो मुझे ज़रा पॉइंटर भी यूज़ करने दें ताकि मैं पॉइंट करूँ स्क्रीन पे तो आप लोग देख सकें। सबसे पहले जब कोई वाकया होता है तो हम देखते हैं कि वो मोटिव कंसिस्टेंट है। यानी हमारे जो लाइफ में गोल्स हैं या जो काम हम अपने दफ्तर में या अपने रोल में अपने प्रोफेशनल रोल में कर रहे हैं उससे वो वाकया कंसिस्टेंट है, यानी उसके साथ मुताबिकत रखता है, या कि इनकंसिस्टेंट है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे मोटिव की टाइप क्या है, क्या वो एपिटेटिव मोटिव है या अवर्सिव मोटिव है। एपिटेटिव मोटिव ऐसी चीजें जो हम जिंदगी में ज्यादा चाहते हैं, यानी सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे फंसे हुए लोगों को बचा लेना एपिटेटिव मोटिव है। और अगर आप फायर स्टेशन में काम करते हैं और आपको कॉल आई और आपके फायर ट्रक का या लोग आसान कर देते हैं, किसी खुदा ना खास्ता किसी रिहायशी का जख्मी हो जाना या नुकसान हो जाना उसी फायर की वजह से, ये अवर्सिव मोटिव है, इससे आप बचना चाहते हैं। ऐसी चीज जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं वो अपिटेटिव मोटिव है, जिससे बचना चाहते हैं वो अवर्सिव मोटिव है। फिर तीन मेजर कैटेगरीज हैं। सर्कमस्टेंस कॉस्ट, यानी ऐसे वाकयात जो हालात की वजह से हैं, ऐसे वाकयात जो किसी दूसरे की वजह से हैं, अदर्स कॉस्ट, और ऐसे वाकयात जो सेल्फ कॉस्ट हैं, आपकी अपनी वजह से रोनमा हुए हैं। इसी तरह वाकयात पे आपका कंट्रोल पोटेंशियल लो है, यानी आप किस हद तक उन हालात को या उस इंसिडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो हाई है या लो है, इसकी ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा इमोशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इस रोजमैन मॉडल ऑफ इमोशन एलिसाइटेशन को हम कैसे यूज करते हैं। इस दफा हम हानिया की एग्जांपल लेते हैं। हानिया का एक पेशेंट हानिया को कॉल करता है और कहता है कि आप आपकी थेरेपी मेरे लिए टोटली इनफेक्टिव है और मैं आज से थेरेपी आना और जो आपने मुझे मेडिसिन दी हैं उनको यूज करना बंद कर रहा हूँ। बड़े गुस्से में वो कॉल करता है और फोन पटक देता है। अब ये वाकया हानिया के लिए मोटिव कंसिस्टेंट नहीं है, ये उसके लिए मोटिव इनकंसिस्टेंट है। इस बात पे हम एग्री करते हैं? कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी मॉडरेटर मुझे बताए, इस पे हम एग्री करते हैं कि ये मोटिव इनकंसिस्टेंट है, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, या वो अगर पेशेंट को आ, ठीक करना चाहती थी, रिकवर करना चाहती थी, तो उसकी ये कॉल इसमें एक रुकावट है, ये मोटिव इनकंसिस्टेंट है वाकया। हम एग्री करते हैं? जी। फैंटास्टिक। अच्छा, उसका मोटिव क्या है? पेशेंट को ठीक करना। उसका मोटिव है पेशेंट को ठीक करना, तो ये एक एपिटेटिव मोटिव हुआ, जिसके लिए उसकी एपेटाइट है, जिसके लिए उसकी ख्वाहिश है। इस ड्रॉ भी कर हैं कि अब हम इस ब्लॉक के अंदर कॉज कर जो है वो तलाश करेंगे अपने इमोशन को। अच्छा, अगला सवाल, मैं आप कॉल आई थी या किसी और की वजह से हुआ है या खुद हानिया की वजह से हुआ है? और आसान सा इसका जवाब है कि ये किसी और की वजह से हुआ है। इस वजह से ये अदर कॉज है। अब हमें ऑलरेडी ये पता चल गया कि क्योंकि हम इस रो में काम कर रहे हैं, तो हम इन तीन इमोशंस में से किसी एक को ढूंढ रहे हैं। और बल्कि एवर्सिव मोटिव नहीं है तो कंटेम्प्ट भी निकल गया, या हम डिसलाइक में हैं या हम एंगर में हैं। अब हानिया का
कोई खास कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन के ऊपर, लो कंट्रोल पोटेंशियल है। हानिया कोई खास तरीके से कोई वो पेशेंट को घर जाके तो नहीं ढूंढ के ला सकती, इस वजह से उसका लो कंट्रोल पोटेंशियल है। तो इमोशन हमारे पास आ जाएगा डिसलाइक का। अगर आप थोड़ा सा वरिड हैं इस इमोशनल रिसाइटेशन को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी इस पे बड़ा टाइम लगाया था, तो ये सेंस बनाना इसने स्टार्ट की थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, और इससे भी आसान एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये चलता है। अच्छा, अयान को एक कॉल आती है। अयान की टीम को अपने फायर स्टेशन में एक कॉल आती है कि कराची के किसी XYZ एरिया में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। ये जैसे ही अपने ट्रक में जाके बैठने लगते हैं और रवाना होने लगते हैं, तो इनका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। इनका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, छोटा सा वाकया है, इनका ट्रक नहीं स्टार्ट हो रहा। वाकया वाकया इनका मोटिव ये है कि इन्होंने जाके आग बुझानी है। वाकया इनकंसिस्टेंट है, मोटिव इनकंसिस्टेंट है, इनके मोटिव से मुताबिकत नहीं रखता, इनके मिशन से मुताबिकत नहीं रखता, उसमें रुकावट डाल रहा है, इस वजह से मोटिव इनकंसिस्टेंट है। इनके मोटिव की अपनी नेचर क्या है अयान की? लोगों को बचाना, जो कि एक एपिटेटिव मोटिव है। ये किसकी वजह से कॉज हुआ है? ना ये अदर कॉज्ड है, ना ये सेल्फ कॉज्ड है, मशीन है, खराब हो ही सकती है। तो इस वजह से ये सर्कमस्टेंस कॉज्ड है। हमें ये पता चल गया कि हम इधर कहीं अपने इमोशन को ढूंढ रहे हैं। लो कंट्रोल पोटेंशियल है कि हाई कंट्रोल पोटेंशियल है? लो कंट्रोल पोटेंशियल है या हाई कंट्रोल पोटेंशियल है? इसका आसान सा जवाब ये है कि डिपेंड करेगा कि क्या वहां पे कोई रिपेयर करने वाला मौजूद है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कोई रिपेयर करने वाला मौजूद नहीं है, तो ये लो कंट्रोल पोटेंशियल है। आउटकम इसकी सर्टन है या अनसर्टन है? अगर इसकी आउटकम अनसर्टन है और अयान को नहीं पता कि अब क्या होगा आगे इस वाकये की वजह से, तो जो इमोशन आएगा जो इन तमाम डायमेंशंस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो फियर है। यहाँ पे मैं साथ साथ ये भी एक चीज एलाबोरेट करता चलूं कि यहाँ पे इमोशंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखे गए हैं। हमारे बहुत से प्रोफेशनल्स, हमारे इमरजेंसी मैनेजमेंट के लोग पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, आई सीरियसली डाउट कि वो कभी ये कहेंगे कि मैं इस वक्त फियर महसूस कर रहा हूँ। फियर के साथ बहुत सारा स्टिग्मा भी है, बहुत सारा जो आपका एक प्रोफेशनल ब्रोवाडो का जो इमेज है वो भी रिलेटेड है। तो लोग कॉशन का लफ्ज यूज करेंगे, लोग एप्रीहेंसिव का लफ्ज यूज करेंगे। लेकिन अगर उस टाइम पे आप उनके ब्लड टेस्ट करें और उनके क्लिनिकल जो वाइटल साइंस हैं उनको मॉनिटर करें, तो उसमें जो इमोशन आपके सामने आएगा, एकेडमिक्स में उसका नाम फियर ही है। आप कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें वो एक अलग बात है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा कि फियर को फियर ही कहो, आप जो दिल कर रहा है आप कहो, आप इसको एप्रीहेंशन कहो, कॉशन कहो, रिस्क एवर्सिवनेस कहो, एनी टर्मिनोलॉजी इज फाइन विद अस, बट एक्चुअली वो है फियर ही। उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, मगर है वो फियर ही। ठीक है जी, दैट्स प्रिटी मच इट। मेरे ख्याल से अदील, आई थिंक कुछ अस, क्वेश्चंस भी आए हैं इसी के अराउंड चैट पे। तो जी जी जरूर। लाइबा पूछ रही है कि अगर लो कंट्रोल पोटेंशियल है लेकिन डिसलाइक के अलावा भी तो इमोशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपने अभी जैसे बोला कि अगर आप टेस्ट करेंगे तो लेकिन ये वाला इमोशन आएगा। इस पे कुड यू क्लैरिफाई दिस अ बिट? हाँ, दैट्स एन एक्सलेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू लाइबा। इससे मुझे ये क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा, ये बताने का मौका मिलेगा कि रोजमैन ने जो हमारे मोस्ट बेसिक 16 इमोशंस हैं उनके साथ काम किया हुआ है। एकेडमिक्स की दुनिया इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ इमोशंस हैं, बट आई हैव सीन पब्लिश्ड रिप्यूटेबल पब्लिश्ड पेपर्स विद 72 इमोशंस एंड इवन मोर देन दैट। लेकिन जो हमारे बहुत कोर बेसिक 16 इमोशंस हैं उनके ऊपर रोजमैन ने काम किया था।
और ये वो 16 इमोशंस हैं। ये रोजमैन ने बिल्कुल भी क्लेम नहीं किया कि दीज आर दी ओनली इमोशंस दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट मोर। और ये भी कतई जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट ये टूल आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में या किसी और को अंडरस्टैंड करने में एक क्लू देने की हद तक जरूर हेल्प करता है। ये समझने में जरूर हेल्प करता है कि what are the possibilities that someone would be or I would be experiencing a certain emotion। वहां पे ये जरूर हेल्प करता है। To answer your question exactly, yes, there are many other emotions which are not visible here in this model, uh, but this model only works with these 16 emotions. Do we have any other questions, Hafsa? I think Laiba को ये clear हो गया है, and she's just summarizing that there can be different emotions hidden behind the dislike. अगर हम इस मॉडल को ना देखें, लेकिन लाइबा आपको ये clear हो गया है what Adil was trying to explain? Yeah, great. Fantastic. Thank you. I think is there another question that you wanted to share with the chat, Adil? Sorry, say again, Hafsa? Was there another like pop-up quiz that you wanted to share with everyone? Yes, I think there is another pop-up quiz that we can go ahead with right now. Okay, great. I have a question. Adil, you are talking about the crisis and the emergency management and crisis. But the thing is that so you are talking in terms of disasters, the environmental disasters or human disasters. What about, can we apply all these things in the personal level, crisis and emergency management at personal level, which we face it day-to-day basis? Thank you. Absolutely, yes. And thank you. That is also a very genuinely nice question. ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी होता है सिमिलर वेबिनार्स में, एंड आई लव इट। और एब्सोल्युटली देखें, हमने यही यही कनेक्शन बना हमारा वेलबींग के साथ कि हम से बात तो कर रहे थे डिसीजन मेकिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग के आउटकम की, बट हमने पाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जब आप लोगों को हम ट्रेन करते हैं, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज़ सिर्फ आपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करनी है, पर्सनल लाइफ में यूज़ नहीं करनी। आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री आपको बताऊं, आई वॉज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। मैंने अपना मास्टर्स भी ऑस्ट्रेलिया में किया था कई सौ साल पहले, और उस टाइम पे मेरा थीसिस का टॉपिक था, मास्टर्स बाय रिसर्च था, तो वो ये था कि ह्यूमैनिटेरियन रोल्स में बॉडी लैंग्वेज ह्यूमंस की कैसे अफेक्ट करती है आउटकम्स को। और उस वक्त से लेके मैं पिछले कोई 10-15 सालों से इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी करता जा रहा था साथ साथ। दैट्स व्हाई आई मेड इट अ टॉपिक ऑफ माय पीएचडी आल्सो। एब्सोल्युटली यस, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मैं कोई डिफैक्टो थेरेपिस्ट हूँ। अपनी मेरे मेरे पास कोई थेरेपी की सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, क्लोज वंस के लिए आई हैव बीन अ थेरेपिस्ट फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि मुझे ये बेसिक कोर चीज़ें पता हैं। और आई हैव बीन एबल टू रेगुलेट माई इमोशंस। I'm still not claiming कि मैंने परफेक्ट कर लिया इसको, बट मेरी अपनी ज़ात में मैंने बहुत क्लियर और इवन मेजरेबल तब्दीलियां देखी हैं जब से मैंने इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, यस, एब्सोल्युटली दे आर इक्वली रेलेवेंट इन आवर पर्सनल लाइव्स। रूल्स आर द सेम, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में इनको अप्लाई कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। Okay. Thank you, Adil. I think we have the results of the pop quiz as well now. Absolutely, I can see the results and thank you participants। आप लोगों ने 80 अराउंड 80% ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इमोशनल एक्साइटेशन
आपकी गोल की कंसिस्टेंसी, मोटिव कंसिस्टेंसी, कंट्रोल पोटेंशियल, किसी सिचुएशन में क्या इमोशन फील करेंगे। सॉरी, बीच में हो गया था voice, but now it's back. So Adil, ओके we will be taking the questions a bit later on because we are in a bit of a like timeline. तो please आप लोग अपने emotions chat में डाल दें, and wherever possible we will be taking them up. तो अदील, आपने emotions के बारे में तो बात की. Can you talk a bit more about what emotional intelligence is then? ओके, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया, क्या बंद हो गई है या अभी भी शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? जी, बंद हो गई है. ओके, फैंटास्टिक। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर अब हम जंप करें तो चार चीजों को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इससे ज्यादा चीजें हैं, लेकिन बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो 1990 में मायर एंड सोलोवी का पेपर था इमोशनल इंटेलिजेंस, जो जिसको सेमिनल पेपर माना जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, उन्होंने चार एबिलिटीज का नाम दिया था। इसमें पहली थी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। हमारी किस कदर एबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी थी द एबिलिटी टू रेगुलेट आवर इमोशंस। हम किस हद तक अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं या किस हद तक उस पर कंट्रोल रखते हैं। तीसरी है अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, हाउ वेल वी कैन अंडरस्टैंड समवन एल्सेस इमोशन। और चौथी है द एबिलिटी, और यहाँ पे बड़ा क्लियर कट लिंक आपको नजर आएगा लीडरशिप के साथ भी, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इमोशंस। हम किस हद तक दूसरों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी मिजरी को कम कर सकते हैं, या उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको अलाइन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ, फॉर इंस्टेंस। इन चार चीजों का नाम जो है बेसिकली, जब आप इनको कंबाइंड करते हैं और जब ये तमाम चीजें आप किसी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, तो उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और फिर इसमें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में अगर बात करें तो how does that factor in and what does that look like in real life? एब्सोल्युटली, ये वही सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली आपकी पहली एबिलिटी है। जो सेल्फ अवेयरनेस है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आप किस हद तक ये समझ पाते हैं जब अयान किसी सिचुएशन में होता है या हानिया किसी सिचुएशन में होती है, कैन दे नेम व्हाट आर दे एक्सपीरियंसिंग। हमारी जो जो रिसर्च है, एक एवरेज बंदा 4 से 5 इमोशंस के नाम बता सकता है। बहुत से लोग गिल्ट और शेम और कंटेंट को फॉर इंस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, गिल्ट और शेम को एज अ सिनोनिम यूज करते हैं, हालांकि इन दोनों की मैनिफेस्टेशन और इनके सिग्नल्स और इनके एडेप्टिव और मैल एडेप्टिव फंक्शन सबके सब बड़े डिफरेंट हैं। तो किस हद तक आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस करते हैं। देखिए, जिस तरह हम अपनी थिंकिंग के बारे में आपने सुना होगा, फिलोसफर्स का एक बड़ा वो कॉन्सेप्ट है मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। इसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस में हमारे पास टर्म है मेटा अफेक्टेशन। मेटा अफेक्टेशन इज क्वेश्चनिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपको किस हद तक ये पता है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपको किस हद तक पता है कि आप क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस, आपको किस हद तक पता है कि किस इमोशन पे और उसकी कितनी इंटेंसिटी पे आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका आपकी बॉडी का सोमैटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, आपकी इम्पल्स क्या होती है, आप एक्शन क्या लेते हैं, और आपकी फीलिंग क्या होती है। तो इन तमाम चीजों को हम सेल्फ अवेयरनेस की अम्ब्रेला टर्म के अंदर लेके आते हैं। हफ्सा। um और जब हम लोग कोई इमोशन को रिकग्नाइज कर लेते हैं अपने अंदर, तो फिर हम लोग सेल्फ रेगुलेशन की तरफ कैसे चल सकते हैं और उसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? और आई गेस ये बिट जो है ना, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता है जब भी मैं इस तरह की कोई टॉक कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस रिसर्च में ये देखा कि सेल्फ रेगुलेशन का हम सब, जो हमारी सोसाइटी में आप लिंक्डइन की या इंस्टाग्राम की पोस्ट देखें,
आप कहीं पे कुछ भी देखें, जो नंबर वन टेक्निक यूज की जाती है इमोशनल रेगुलेशन के लिए, जो कि मैंने ये पाया अपनी रिसर्च में कि बिल्कुल इनवैलिड टेक्निक है, वो है पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। ठीक है ना, पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग होती क्या है? अयान को टर्मिनेशन लेटर मिल गया, उसको फायर सर्विसेज से निकाल दिया, अब वो घर आके बैठा हुआ है। अयान खुद को कैसे, अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करेगा? चलो यार, इसमें भी कोई खैर होगी, चलो यार हो सकता है मुझे इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। या हानिया को एक पेशेंट ने फोन करके खरी खरी सुना दी, तो हानिया के घर वाले भी उसको यही कहेंगे और वो खुद को भी ये कहेगी चलो यार ठीक है, मे बी इस पेशेंट के साथ मेरा लिखा ही इतना था। हम सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करने लग जाते हैं, और उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको फ्रेम फ्रेम डिफरेंट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। या दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं, जो कि दूसरा भी तरीका बिल्कुल गलत है, यार मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, चलो जाके आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो जाके कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं मेडिकेटिंग योर इमोशंस। मेडिकेटिंग योर इमोशंस ऑल्सो डज नॉट वर्क, और हम आगे जाके बात करेंगे कि व्हाई इट डजेंट वर्क। बट फिर सवाल ये पैदा होता है कि सेल्फ रेगुलेशन में हमने करना क्या है, हम करते क्या हैं? और यहाँ पे मैं एक दफा फिर चाहूंगा कि अपनी स्लाइड एक शेयर करूं, हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। आप ये सेल्फ रेगुलेशन एआई माइंडसेट वाली स्लाइड जी देख पा रहे हैं सब? जी जी। ओके, ग्रेट। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आपने जैसे भी अप्रेज करना है, जो भी समझना है उस वाक्य को, वो वैलिड है। आपने उसको ज्यादा कोशिश नहीं करनी। अभी आपने कोशिश, अगर आपने बहुत स्टार्ट में इमोशन के पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग की, तो आपका नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी और आपका ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, एंड इट्स नॉट गोना वर्क। जब आप हर्ट हैं ना अंदर से कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, और जब आप जबरदस्ती खुद पे फोर्स करेंगे ना कि यार चलो इसमें भी कोई खैर होगी, कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी, आपका नर्वस सिस्टम अभी तक रेडी नहीं है इसको मानने के लिए। वो शायद अगले एक हफ्ते भी रेडी नहीं होगा, और आप फोर्स कर रहे हैं एक नया पर्सपेक्टिव अपने यूपर। आप अपने सोमैटिक रिस्पॉन्स को भी एज सच रेगुलेट करने की कोशिश करना, इन माय हम्बल ओपिनियन, कोई बहुत यूजफुल नहीं है। ना ही अपनी फीलिंग को। अलबत्ता जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है ना, हम अपोलॉजीज भी देखें कैसे करते हैं। सॉरी यार, मैंने कल आप पे अपने कॉलीग के पास जाएंगे, सॉरी यार मैंने कल आपसे बड़ा रूड बात की, वो एक्चुअली मुझे भी जो है ना, मैं बड़ा काम का लोड था। यानी हम इस बात को नॉर्मलाइज करते जाते हैं कि जब कोई अप्रेजल ऐसा हो जाएगा, जब कोई वाकया ऐसा हो जाएगा, तो रिएक्शन देना जायज है। हमारी अपॉलॉजीज भी, सॉरी यार कल जो है मुझे बॉस ने डांटा था, तो मैंने तो आके तुम्हें भी डांट दिया, तो असल में कोई नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। इस माइंडसेट को चेंज करना ना, ये माइंडसेट रखना कि मैं हर्ट फील कर सकता हूँ, सैड फील कर सकता हूँ, फियरफुल फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मैंने रिएक्शन के साथ उसका ताल्लुक तोड़ देना है। मैंने अपने चेहरे के तासुरात के साथ, अगर आप एक स्ट्रेटेजिक सेटिंग में हैं, अपनी टीम्स के साथ हैं, आप एक लीडर हैं, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, आप अंदर से खौफजदा हैं, लेकिन आपके चेहरे के तासुरात ना बताएं कि आप खौफजदा हैं। आपकी मोटिवेशन है कि ट्रक में बैठो और वापस चले जाओ, आप इस मोटिवेशन पे एक्ट ना करें। ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। फिर आ, आपकी टेम्पोरल डिस्टेंसिंग की टेक्निक एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कि जब आपके साथ कोई वाकया हो जाए, तो आप ये सोचें, आपको अभी अभी किसी ने आके कोई बहुत तल्ख बात कह दी है, आपके बॉस ने, आप टेम्पोरल डिस्टेंसिंग करते हैं कि जिसमें आप सोचते हैं कि आज से एक हफ्ते बाद हाउ वुड आई फील अबाउट दिस। तो आपको थोड़ी सी शायद तसल्ली मिल जाए, आपका जो थोड़ा सा जो बबल बन रहा है अंदर, वो थोड़ा सा कम हो जाए। इट इज स्टिल वेरी ओके टू टू फील हर्ट अबाउट इट। हर्ट फील करने में या सैड फील करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अगर टेम्पोरल डिस्टेंसिंग से कम होती है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। आपकी स्पेशल डिस्टेंसिंग है, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ये अपने आप में बड़ा
एक गहरा टॉपिक है, डीप टॉपिक है। लेकिन इमोशनल लीकेज जो हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहे थे कि यार मुझे मेरे बॉस ने डांटा था तो मैंने तुम्हें भी आके डांट दिया, ये इमोशनल लीकेज है। हमारे साथ ऑफिस में कुछ होता है और हम घर जाके उसकी भड़ास निकाल रहे होते हैं। इस चीज को चेक में रखना इज सेल्फ रेगुलेशन। और इमोशनल विजडम क्या है ये भी मैं एंड पे बात करूंगा। बट चेंज द रिएक्शन माइंडसेट, टेम्पोरल डिस्टेंसिंग और इमोशनल लीकेज पे चेक रखना, ये तीन बेसिकली की टेक्निक्स हैं हमारे अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की। Nayab की तरफ से क्वेश्चन आया which I think is relevant to this discussion right now. She's asking कि ये फिर isn't this just masking emotion, especially अगर आप facial expressions या facial responses को आप अपना limit कर रहे हैं. देखें, ऐसा है ना कि यस इट इज मास्किंग इमोशंस और इट इज लाइक हाइडिंग। आई थिंक जो बेहतर टर्म मैं यूज करना चाहूंगा प्रॉब्ली नायाब वाली बात है, लेकिन हाइडिंग इमोशंस। एंड आई कैन एब्सोल्युटली से विद सर्टेनिटी के स्ट्रेटेजिक सेटिंग्स में आप एक इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक दूसरी इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग चल रही है। या लेट्स जैसे अयान जो है वो फायर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन गया है। अब 25 साल का एक्सपीरियंस है उसका और डायरेक्टर है। और वो जो है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेट्स जैसे पैरामेडिक्स के साथ जो है या ईडी के साथ उसकी मीटिंग चल रही है। और वहां पे वो फियर फील कर रहा है। वहां पे फियर शो करा देना अपने चेहरे के तासुरात से इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। वहां पे इमोशनल रेगुलेशन यही है कि अंदर से आप जरूर फियर अपने आप से ना छुपाएं, लेकिन लोगों से कई दफा अपने चेहरे के तासुरात छुपाना इज एडवाइजेबल, स्पेशली इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। Okay, great. So Binesh and Iman, I think Adil आगे जाके temporal distancing पे और बात करेंगे. So we'll cover that then. Um, मुझे I think is there another pop quiz here that we want to ask everyone? यस देयर इज अ पॉप क्विज हियर, क्विकली उसको कवर कर लेते हैं। Oh, Astra, can you see? Laiba is saying she can't see the quiz. Okay. जी मैं रिजल्ट्स देख पा रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एज मच एज 96% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि इमोशन इमोशन रेगुलेशन का मतलब है नोटिसिंग द इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इम्पल्स एंड चूजिंग अ रिस्पॉन्स। आप अपने सोमैटिक रिस्पॉन्स को अलाउ ना करें कि वो आपसे कोई इम्पल्स या एक्शन करा दे, बल्कि आप चूज करें कि आपने क्या रिएक्शन देना है जो कि बड़ा नपा तुला और कैलकुलेटेड हो, स्ट्रेटेजिक हो, टैक्टिकल हो। तो यही आपकी सेल्फ रेगुलेशन है। अब मैं चाहूंगा कि हफ्सा आगे मूव करें क्योंकि मैं टाइम पे जी देख रहा हूँ जी तो हम जी बड़ी तेजी से टाइम सही। तो यूज कर रहे हैं। हम लोग वापस से इमोशंस पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि आपने कहा था कि थर्ड एबिलिटी इज अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस। सो इसके ऊपर थोड़ा सा और बात कर सकते हैं. हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम सिंपली बीइंग नाइस टू समवन व्हेन दे आर फीलिंग डाउन और feeling any exaggerated emotion? देखिए, एक आई गेस जो हमारा फ्लो है उसमें आगे एक ये भी चीज़ है एम्पैथी प्रैक्टिस के ऊपर, वहां पे मैं इन्फ्लुएंस और एम्पैथी दोनों को मजीद डिस्कस करूंगा। लेकिन अगेन वही बात है कि मैंने ये देखा है कि हमारी एम्पैथी की प्रैक्टिस में हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों को गैस लाइट करते हैं।
मैं यहाँ खुद एक स्ट्रेटेजिक पॉज ले रहा हूँ ताकि इस बात को हम अब्जॉर्ब कर सकें। जब हम किसी की केयर करते हैं और हम जाते हैं उनके पास और वो बड़े इमोशनली डाउन है, तो हम उन्हें गैस लाइट करते हैं सबसे पहले। यार क्यों ऐसे सोच रहे हो, देखो अफ्रीका में भी बच्चे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तुम क्यों ऐसे फील कर रहे हो। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताते हैं कि तुम्हारी फीलिंग वैलिड नहीं है। हमारे पार्टिसिपेंट्स में जो भी साइकोलॉजी से बैकग्राउंड रखते हैं उनको ऑलरेडी पता है, बाकी बहुत शाज़ो नादिर ही हम लोगों को पता है। मुझे भी बड़ी लेट तक अपनी लाइफ में ये नहीं पता था कि एम्पैथी प्रैक्टिस क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोगों की फीलिंग्स को वैलिड कहते हैं। फीलिंग्स बाय देयर डिफॉल्ट वैलिड है, कोई कुछ भी फील कर रहा है वो वैलिड है, हम उसको नहीं चैलेंज कर सकते। क्योंकि उनकी फीलिंग हम नहीं फील कर रहे तो हमें वो इनवैलिड लग रही है और हम उसको गैसलाइट कर रहे हैं। ये बहुत ही एक गलत तरीका है एम्पैथी प्रैक्टिस करने का। बट उस पर दोबारा आते हैं, उससे पहले जो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहा वो तो एग्जिस्टिंग रिसर्च थी। ये एक हमारी रिसर्च का डायरेक्ट आउटकम है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ इमोशंस। और ये वही उन्हीं 16 में से सॉरी, उन्हीं 16 में से 15 इमोशंस हैं जिनके ऊपर हमने काम किया। और बड़े हमने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के कमांडर्स को इंटरव्यू किया और कुछ सर्वेस किए, और हमने ये पाया कि हर इमोशन का एक तो सिग्नल होता है और एक उसका एडाप्टिव फंक्शन यानी कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, और एक उसके मैल एडाप्टिव फंक्शंस यानी कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि अयान जो है वो एक रेस्क्यू मिशन पे है, या अयान की ज्यादा एग्जांपल्स हो रही हैं, हानिया की एग्जांपल लेते हैं। हानिया के क्लिनिक में एक मंथली मीटिंग हो रही है और उसकी एक कॉलीग है जिसको हानिया लाइक करती है। अब लाइक जो है उससे सिग्नल होती है इंटरपर्सनल कंपैटिबिलिटी, कि इंटरपर्सनली आप और वो अलाइंड है। इसके अच्छे असरात ये हैं कि हानिया अपनी कॉलीग पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी। इसके एक और अच्छा असर यह है कि इंटरपर्सनल कोहेजन होगी, ये उसे सपोर्ट करेगी, वो इसे सपोर्ट करेगी। मगर इसके कुछ मैलअडैप्टिव एस्पेक्ट्स या रिस्क्स भी हैं, और वो ये हैं कि उसी मीटिंग में एक्सेस एफिलिएशन डेमोन्स्ट्रेट करेगी हानिया उस कॉलीग की तरफ, पॉजिटिविटी बायस का शिकार होगी। अगर वो कॉलीग कुछ गलत भी बात कर रही है तो हानिया फिर भी, क्योंकि पॉजिटिविटी बायस का शिकार है, उसको वो बात गलत नजर नहीं आएगी, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेगी। हानिया को ये कतई इल्म नहीं होगा कि मैं पॉजिटिविटी बायस का शिकार हूं, क्योंकि हमें कॉग्निटिव बायसेस का पता नहीं चलता। इसी तरह से हानिया फेवरेटिज्म का शिकार होगी और अपनी इस कॉलीग को फेवर कर रही होगी। उसका आइडिया अच्छा हो या बुरा हो, हानिया को अच्छा ही लगेगा। और उसी मीटिंग में अगर कोई और कॉलीग है हानिया की और उसको वो डिसलाइक करती है तो ये इंटरपर्सनल इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। और इसके अंदर ये होगा कि हानिया हर किस्म का सोशल रिस्क अवॉइड करेगी, उसको चैलेंज नहीं करेगी। हानिया अपना ट्रस्ट कैलिब्रेट करती रहेगी, हर वक्त देखती रहेगी कि मुझे कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं। हानिया बाउंड्री सेटिंग करेगी। ये तो हो गए अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस। मगर कोलैबोरेशन विड्रॉल होगा, हानिया कोलैबोरेट नहीं करेगी जिसको वो डिसलाइक करती है, और नेगेटिविटी बायस का शिकार होगी, यानी उस कॉलीग के अच्छे आइडियाज भी उसको अच्छे नहीं लगेंगे। मैं जो आज आपका, आज या कल जब भी असरा आप बता सकती हैं, जब एक नोट ऑफ थैंक्स वाली ईमेल जाएगी आप सबको, उसके अंदर हमने ये पावर पॉइंट इंक्लूड कर दिया है, सो ये टेबल आपको मिल जाएगा। अविश हमारे पास टाइम ज्यादा होता तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते, लेकिन दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ इमोशंस। दिस हैज कम एग्जैक्टली आउट ऑफ माय पीएचडी, जिसमें हमने कुछ इमोशंस और उनके उनके सिग्नल्स, उनके अडेप्टिव और मैल अडेप्टिव फंक्शंस को हमने जो है ना वो पिन डाउन किया है, उनको एलाबोरेट किया है, जो उनके मोस्ट सेलिएंट फंक्शंस हैं। इसके ऊपर अगर कोई एक आध कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। Right, let me see.
I think अभी emotions as signals पे specifically शायद कोई question नहीं आया है. हम्म Um, बाकी we have some questions related to the previous topics that we talked about. ओके, Um, उनको एंड पे फिर देख लेते हैं हफ्सा, आई गेस। sorry? उन क्वेश्चंस को जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है उनको फिर एंड पे देख लेते हैं, जो Okay, लार्जर क्यू एंड ए सेशन है। ठीक है, तो right. फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इसको जरूर Um, देखिएगा। बहुत सारे इमोशंस जो कि हमें अपेरेंटली बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर आप प्राइड का शिकार हैं, लेट्स जस्ट से अभी अभी हनान ने सेकंड फ्लोर से एक फैमिली को सक्सेसफुली बचा लिया है, और इस वक्त हनान जो है वो प्राइड फील कर रहा है। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसे कि हनान ओवर कॉन्फिडेंस फील करेगा, थर्ड फ्लोर पे जाते हुए शायद वो उतनी प्रिकॉशन ना ले। और ये बात पता होना हनान को बहुत यूजफुल है। अगर उसको पता है कि प्राइड ओवर कॉन्फिडेंस कॉज करता है, तो हनान अगली फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए भी जब जा रहा होगा तो बड़ा केयरफुल होगा। हनान को अगर ये पता होगा कि पर्सपेक्टिव टेकिंग यानी दूसरे की बात सुनना थोड़ा सा इसमें ब्लॉकेज आती है जब आप प्राइड फील कर रहे होते हैं, दैट कैन रियली हेल्प। पॉजिटिविटी बायस और इम्पल्सिविटी यानी अचानक अचानक से डिसीजन लेना सोचे समझे बगैर, ये कुछ नुकसानात हैं प्राइड के। अगर ये बातें हनान को पता हैं तो वो इन तमाम रिस्क को एक्टिवली अवॉइड करने की कोशिश करेगा। मगर अगर उसको पता ही नहीं है कि प्राइड के ये रिस्क होते हैं, तो देयर इज वेरी लिटिल चांस कि हनान इनको अवॉइड कर सके। there are two questions related to this. Ek to हम्म Nayab is asking if what was the sample population of these researchers या models जो आपने बनाया? हम्म और फिर दूसरा इसकी you can answer this first. ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सैंपल ग्रुप है वो तकरीबन 450 पार्टिसिपेंट्स जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस हैं, जिसमें कुछ एक्चुअल डिप्लॉयमेंट्स थी और कुछ सो बेसिकली यूएन ओचा की बॉडी है इंसरैग, जो कि हर 5 साल बाद इन तमाम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को, जो क्लासिफाइड टीम्स है, सर्टिफाई करती है, जिसके लिए इनकी 3 4 या 7 रोजा एक मॉक डिप्लॉयमेंट होती है। मैंने वो मॉक डिप्लॉयमेंट्स भी देखी, वो मेरा कॉन्टेक्स्ट था। एक्चुअल डिप्लॉयमेंट्स भी वेनोवेटा की मैंने देखी, उनको भी ऑब्जर्व किया। जिन लोगों का कंसेंट था मेरे पास ऑब्जर्व करने के लिए या बात करने के लिए, वो 450 पार्टिसिपेंट्स थे जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के मेंबर्स थे। Okay. And then Aisha is asking कि feeling and emotions can both be triggered by the same signal या उनमें कुछ difference होता है? देखिए, बेसिकली डिफरेंस होता है इमोशन और फीलिंग में। इमोशन आपका इमोशनल एपिसोड आपकी कॉम्प्रिहेंसिव 5 कंपोनेंट्स की एक एपिसोड है, जिसमें आपका अप्रेजल है, सोमैटिक रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर आपकी इम्पल्स है, एक्सप्रेशन है और फीलिंग। तो इमोशनल एपिसोड का एक एक निस्बतन छोटा हिस्सा या पांचवा हिस्सा फीलिंग है। सो फीलिंग इज पार्ट ऑफ द इमोशनल एपिसोड। इमोशन आप कह रहे हैं जो हर इस चीज को, जो कि इस इमोशन की वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, इररेलेवेंट। लेकिन उस इमोशन की जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी समरी जो आप तक पहुंच रही है, आपके ब्रेन तक, थिंकिंग ब्रेन तक, वो आपका फीलिंग वाला बेटा है। Okay, great. Um, we'll start taking questions. I think अब काफी सारे हमारे पास आए हुए हैं. But before those questions, Adil, do you want to cover anything related to जो आपने empathy पे touch upon किया था पहले? जी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मेरी स्क्रीन रुक गई है, प्लीज मुझे कंफर्म जी. कीजिएगा। ठीक है। एम्पैथी के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना या दूसरों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना, इसके अंदर मैं पहली वाली बात रिपीट करता चलूं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की कोशिश करना किसी के साथ, वो एम्पैथी नहीं है। गैस लाइटिंग एम्पैथी नहीं है। किसी को बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाना, वो एम्पैथी नहीं है। अगर हम ये यकीने काम, मैं आपको अपनी जिंदगी में ये बता सकता हूँ, जब से मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई भी शख्स कुछ भी फील कर सकता है, एंड दैट्स फाइन, मुझे उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए,
ये उनका हक है कि वो जो चाहें वो फील कर लें। मेरी अपनी जिंदगी, जब से मैंने लोगों की फीलिंग्स को कंट्रोल करना छोड़ दिया है, मेरी अपनी लाइफ बहुत आसान और बहुत सिंपल हो गई है, क्योंकि अब मैं लोगों की फीलिंग्स को वैलिडेट करता हूँ। मैं कभी उनको चैलेंज नहीं करता, कभी पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग की कोशिश नहीं करता, और रिस्पेक्ट करता हूँ। सो कोई भी, मैं अपने एम्प्लॉय के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, उनको आगे पुश करने के लिए उनको ट्रेनिंग्स पे भेज रहा हूँ, और एक दिन वो आके कहता है सर मुझे ये फील हो रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। आ, अचानक से मेरी इम्पल्स ये होगी, मैं जो इमोशनल एपिसोड एक्सपीरियंस करूंगा, मेरी इम्पल्स ये होगी कि मैं तहस नहस कर दूं उसकी इस फीलिंग को, फौरन चैलेंज करूं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करूं। बट वन ऑफ द की डिफरेंसेस इज कि मैं उनकी फीलिंग को चैलेंज नहीं करता। फीलिंग्स मेरे लिए वैलिडेट ही है, और मैं एक क्यूरोसिटी का मुजाहरा करता हूँ, मैं एक प्रेजेंस का मुजाहरा करता हूँ, कि मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर उनकी ऐसी फीलिंग है तो क्यों है। फीलिंग्स जो हैं वो लोगों की वैलिड होती हैं, ये मान लेना और इस पे ईमान ले आना बड़ा आपके लिए जिंदगी में आसानी पैदा करता है। दूसरा, आपका आपका कोई फ्रेंड या कॉलीग या प्रोफेशनल से, चलें एक और हानिया की मिसाल लेते हैं। लेट्स इमेजिन हानिया जो है वो 3 सिस्टर्स हैं। हानिया जो है वो मिडिल में है, हानिया से एक बड़ी सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर है। और शुरू में किसी ने सवाल किया था कि पर्सनल लाइफ में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई होती है। एक पर्सनल लाइफ की मिसाल लेते हैं। हानिया की सबसे बड़ी बहन की शादी हो रही है, और हानिया की जो छोटी बहन है वो रुखसती के टाइम पे बहुत ज़ारो कतार रो रही है, क्योंकि वो मिस करेगी। सारी उम्र ये तीनों बहनें एक साथ रही हैं, और अब वो घर चेंज करके जा रही है, तो वो बड़ी डिस्ट्रेस में है। सारे कजन्स, सारे रिलेटिव्स आके उस छोटी बहन को बता रहे हैं कि क्यों परेशान हो रही हो, कि क्यों इतना रो रही हो, अगली गली में ही तो वो शादी होके जा रही है, हर दूसरे दिन वो आ जाया करेगी, जब तुम्हारा दिल करे तुम चली जाया करना, इसमें रोने की क्या बात है, बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं रोते। हर कोई उसको ये समझा रहा है। बट हानिया बड़ी काउंटर इंट्यूटिव बात करती है। हानिया उसके पास आके कहती है, लेट्स जस्ट से उसका नाम रिमशा है। हानिया उससे कहती है कि रिमशा, योर फीलिंग्स आर वैलिड, आई एम हेयर फॉर यू। अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो, मैं तुम्हारे साथ मिल के रोऊंगी, और जिस हद तक हो सका तुम्हारा पेन शेयर करूंगी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। These are by far the strongest things someone can say to you when you are in distress. क्योंकि होता ही है, जब हमारा नर्वस सिस्टम ट्रिगर्ड होता है, हम डिस्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि दुनिया हमें मिसअंडरस्टैंड कर रही है। ऐसे मौके पे जब कोई अंडरस्टैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेट करता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत हद तक काम डाउन होता है, बहुत हद तक उसको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे स्टेज पे आपकी प्रेजेंस, आपकी क्यूरोसिटी, हानिया उससे कहती है कि आओ मिलके इकट्ठे आंसू बहाते हैं, क्योंकि यस, इट इज अ बिग थिंग कि उसकी शादी हो रही है और वो जा रही है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। लेट्स नॉट ट्राई टू चेंज परस्पेक्टिव, स्पेशली ऑन डे 1। चलो एक महीने बाद फिर भी परस्पेक्टिव शिफ्टिंग की कोशिश करेंगे। एट दिस स्टेज लेट्स नॉट ट्राई टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स, लेट्स ट्राई टू cry together and feel the grief. Let the pain go through our bodies. And that is the only way जब आप खुद या कोई और एक्चुअली रिकवर कर सकते हैं ग्रीफ से। हफ्सा, So आई थिंक यहाँ because पे भी we're कुछ a पॉप bit क्विज है short हमारे on पास। time, हाँ, और हाँ, काफी इसको सारे स्किप कर questions भी देते आ हैं। गए। बस एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, which I think is also echoed in some of the questions, कि emotional pop पोल का आप सब लोग प्लीज जवाब देते। बट साथ साथ में मैं थोड़ा सा ये भी बोलना चाह रही हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने बात की है, और एम्पैथी के ऊपर बात की है। And because we are part of the crisis and emergency response working group, and that's what we're working on. तो emotional intelligence decision making spaces में कितनी relevant होती है, और कैसे factor in करती है? Especially I think हमारे पास एक question भी आया था कि um, एक सेकेंड सॉरी, कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन जब रिस्पॉन्स टीम्स में होते हैं तो उन्हें भी कैसे डीएस्केलेट किया जा सकता है? जी, मैं थैंक यू वेरी मच हफ्सा।
इसके ऊपर मैं कुछ डिटेल से बात करना चाहता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इसको मैं ज़रा शॉर्ट करूंगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक विजुअल है। आप मेरी स्क्रीन पे आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन में देख Yes. सकते हैं अपनी स्क्रीन पे? ओके। सो दिस वाज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट जो हमने अपनी रिसर्च का देखा, और हमने ये देखा कि जब भी कोई डिसीजन बनाना होता है किसी लीडर को इमरजेंसी या क्राइसिस में, तो हमने उसके तीन फेजेस देखे। हमने देखा कि उसमें आइडेंटिफिकेशन है, हमने देखा उसमें आइडेंटिफिकेशन है, डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन है, और कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर वर्क है। सो बेसिकली बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं, बल्कि मैक्सिमम डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें लीडर अकेले नहीं काम करते। उन्होंने कंसल्ट भी करना है, उन्होंने जो है वो निगोशिएट भी करना है, अप्रूवल्स भी लेने हैं, अप्रूवल्स भी देने हैं। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर वर्क भी होता है। बट हमने ये देखा, हमने, अगर आप में से जो रिकग्निशन पॉइंट डेवलपमेंट मॉडल या परसेप्चुअल साइकिल मॉडल को जानते हैं, डिसीजन मेकिंग अगर किसी का बैकग्राउंड है, तो हमने उनको यूज किया और ये देखा कि किसी भी डिसीजन में कॉग्निटिव आइडेंटिफिकेशन फेज में कॉग्निटिव लोड 60% और इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड लोड 40% होता है। फिर जब आप उस प्रॉब्लम पे फर्दर डेवलप कर रहे होते हैं और एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये 81 और 19% पे चला जाता है। लेकिन कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर वर्क में हमें नजर आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एज हाई एज 47% रोल जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का काम जो है ना वो रोल आ रहा होता है या वो काम कर रही होती है। इसके ऊपर जो हमारा पेपर है वो पब्लिकेशन के लिए गया हुआ है, और आई गेस इट विल स्टिल टेक अ फ्यू मंथ्स। आपको पता है इंटरनेशनल जर्नल्स में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है पब्लिकेशन में, लेकिन आई वुड लव टू शेयर दिस पेपर। जब ये पेपर आ जाए, ये डिसीजन मेकिंग की स्पेस में बड़ा यूजफुल पेपर होने वाला है इमरजेंसी मैनेजमेंट में, तो हम ज़रूर उसकी एक कॉपी जो है शेयर कर सकेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। Great, thank you. Sir, if you could also share the results of the pop quiz that we just did. Okay. Don't worry, at least. Absolutely. 94% of the participants have been spot on. Exactly, जो best example है वो यही है कि I can see this has been really pain for you. I am here with you. यही आपकी presence या validation वाली चीज को पूरा करती है। और अच्छा, बस लास्ट चीज मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करता चलूं, उसके बाद आई गेस हम क्लोजिंग की तरफ जा सकते हैं। देखिए, स्टार्ट में ये पूछा गया था कि मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन रुकी है शेयर होना? Sorry, screen share? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं. नहीं? ओके, दैट्स फाइन। देखिए, जो हमने शुरू में कहा था ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस का वेलबींग से क्या ताल्लुक है, जो आपने किसी के साथ नहीं करना वो अपने साथ भी नहीं करना। आपने अपनी फीलिंग्स को भी इनवैलिडेट नहीं करना। जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा खुदा ना खास्ता रोनुमा हो गया है, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फील द पेन। जब तक आप दर्द को अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगे, आप हील कभी भी नहीं हो सकेंगे। आपको जॉब से निकाल दिया गया, आपके किसी आप फायर फाइटर हैं और आप रोजाना, आप आज एक वाकये में आपने 10 लाशों को बहुत बुरी हालत में डील किया, या आपका एक कॉलीग इमरजेंसी सर्विसेज में जाते हुए जो है उसकी डेथ हो गई खुदा ना खास्ता, या अगर आप हानिया हैं तो आपको आपके क्लिनिक से आज टर्मिनेट कर दिया गया, या आपके एक पेशेंट ने सुइसाइड कर ली जिसके साथ आप 3 साल से थेरेपी कर रहे थे। अब यहाँ इस सारे उसमें जो है ना, अगर आपने खुद को गैस लाइट किया या अपनी फीलिंग को, अपनी तकलीफ को अपने अंदर से गुजरने ना दिया, आप 1 दिन लें, 2 दिन लें, 10 दिन लें, छुट्टी ले लें और गुजरने दें, उस खुद को हर्ट होने दें। जब आप इसके टनल के दूसरी तरफ जब बाहर निकलेंगे ना हील होने के बाद, तो आपके पास कोई इमोशनल बैगेज नहीं होगा। आप मुकम्मल हील होके आगे जिंदगी में जा रहे होंगे। आप उस ट्रॉमा को अपने साथ कैरी नहीं कर रहे होंगे। आप उससे रिकवर करके
उसका असर रहेगा आपकी जिंदगी पे, लेकिन आपकी जिंदगी को एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आज के सेशन में आप तीन चार चीजें अगर मैं कहूँ कि कंक्लूड करें, तो आपने खुद को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को देखना है, आपने अपने रिएक्शन को रेगुलेट करना है, इमोशन पूरे को नहीं, और आपने अपनी या किसी की फीलिंग्स को गैस लाइट नहीं करना। और एक हफ्ता एक एक्सेल की शीट में हमने टूल भी बनाया था पार्टिसिपेंट्स के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं वो भी शेयर करता हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक टूल बनाया है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट आप देख सकते हैं? जी। ठीक है। तो बेसिकली आप देखें कि एक कोई भी सिचुएशन, उसमें आने वाला इमोशन, उसकी इंटेंसिटी, आपका बॉडी सिग्नल क्या था, आपकी इम्पल्स क्या थी, आपने किया क्या, और आपकी इवैल्यूएशन क्या थी, आपके रिएक्शन की। आप 1 से 10 तक कितने नंबर देते हैं खुद को, आपका रिएक्शन कैसे था, आप नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या ये इमोशन दूसरी सिचुएशंस में लीक हुआ। हमने लीकेज की बात की थी ना, कि डांटा ऑफ ऑफिस में होता है बॉस ने, और घर आके हम अपनी अम्मी से लड़ रहे होते हैं। तो क्या हमने कोई लीकेज की, और हमने इसके अंदर एक एग्जांपल भी आपको दे दी है। तो वो भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह लेके चलना है। ये टूल भी हम आपको दे रहे हैं। इसी टूल के अंदर इमोशनल रिसाइटेशन का मॉडल भी है। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पे आप डेट वाइज एंट्रीज इसमें डेली की करते जाएं, और वीकली बेसिस पे आप एआई को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मंथली पैटर्न रिव्यू वो आप करके दे, या सेल्फ अवेयरनेस रिलेटेड आपको इंसाइट्स निकाल के दे। हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स भी लिख दिए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या चैट जीपीटी या जो भी आपका प्रेफर्ड एआई मॉडल है उसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं। Thank you, Deal. This is, I think, would be very helpful for everyone. और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे questions हैं लेकिन time कम है, what we can do is we have noted down all of the questions, and when we'll send over the email to everyone after the webinar, if there's something that we were not able to address within this session, we can also share some answers related to these questions, if that would be okay for you, Adil. Absolutely, that should be absolutely fine. And I think some मेरी तरफ people, से असरा, yeah, some मेरी people तरफ were से asking if they एवरीथिंग could इज, get in touch, though. या Yeah. एग्जैक्टली आप मेरी एक स्क्रीन देख सकते हैं जिसमें लिंक्डइन और जी जी। इंस्टाग्राम का लिंक है। लिंक्डइन पे आई वेलकम यू ऑल, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो। अगर कोई क्वेश्चन है आप लिंक्डइन पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आई रन अ चैनल, आई एम गिल्टी कि मैंने 2-3 महीने से इस पे कोई वीडियो नहीं डाली, लेकिन पिछले साल मैं बड़ा कंसिस्टेंटली डाल रहा था इस पे वीडियोस। इमोशनल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस इसके ऊपर डालता हूँ। तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और कोई डीएम कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई आपकी शिकायत शिकवा है, या कोई अप्रिसिएशन के आप अल्फाज कहना चाहते हैं, यू आर वेरी वेलकम। आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं लेट हो जाऊँ शायद जवाब देने में, लेकिन जवाब दूंगा ज़रूर। तो ये 2 फोरम्स पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। Okay. Thank you मेरी so तरफ much, से Adil. हफ्सा, दैट्स प्रीटी मच इट, एवरीथिंग। Yeah, thank you. I think हम सबके लिए, and a lot of the people are saying that this was very informative, और उन लोग को भी काफी, और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है. We will be moving towards the closing now. So I would like to invite Shehroz Ghori. Shehroz, or if you're on the link, please do let me know. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, just a very, very quick introduction to Shehroz. So he is a senior psychologist and mental health program lead at SIEHS. And he also works on the Sindh government's telehealth program, TeleTabib. So 1123.
and he works on organizational well-being initiatives for emergency responders. तो आज हम लोग जो सारी बातें कर रहे थे उस पे शहरोज काफी ज्यादा काम कर रहे होते हैं. Shahroz is also a PMHC member, and he serves as the Universal Health Coverage thematic lead for the WHO EMRO Regional Coalition for Mental Health, and he represents Pakistan there. So Shahroz, थोड़े से आपकी तरफ से अगर हम लोग remarks ले सकें. Thank you so much, Afsaf. So I would like to thank the speaker, Adil Akhtar. आपका बहुत शुक्रिया. You took the time out for us. ये जो कंपोनेंट है, स्पेशली इमरजेंसी सेटिंग्स जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स डील कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, ये एक मिसिंग कंपोनेंट है कि उनकी सेल्फ केयर के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा होता है. There are no, I have not seen any such seminars or webinars. कहीं पर भी मैंने देखा. तो आई वुड लाइक टू थैंक द PMHC टू ऑर्गेनाइज सच अ ब्यूटीफुल सेमिनार. आपने काफी कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है उसको काफी हद तक लेमैन और जो हमारी टीम मेंबर्स को, एटलीस्ट जो हमारी इस वक्त जो टीम मेंबर्स मौजूद है उनके लिए काफी हद तक आसान किया है. बट आई वुड ऑल्सो लाइक के हम इस पे आगे कोलैबोरेट करें एंड टू फर्दर हम इसी मॉडल को डिसेमिनेट करें थ्रू अ TOT मॉडल ऑल्सो. सो आई वुड, दिस इज माय रिकमेंडेशन कि हम अपनी रिसेंटली हमने तस्कीन के साथ कोलैबोरेट किया था एंड वी एक्चुअली वर build on the psychological first aid model. बट अगर हम ये इमोशनल कंपोनेंट को भी अगर और इनहेंस करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें तो और ज़्यादा फर्दर हमारे लिए हेल्पफुल होगा. सो हमारी इस वक्त जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें 90% ऑफ द इमरजेंसीज आर मेडिकल इमरजेंसीज जो SAHS डील कर रहा होता है. एंड इन दैट सर्विस हम डेली बेसिस पे जो ये कह लें कि जो हमारे पास कंप्लेंट्स होती हैं उसमें ये कह लें डिजास्टर्स हैं, मल्टीपल कैजुअलिटीज फेस कर रहे होते हैं हमारे EMTs. और अगर कोई EMT कोई ऐसा पेशेंट पिक करता है और उसकी उस वक्त कंडीशन स्टेबल है बट सरप्राइजिंगली उसकी जो स्टेटस है वो अचानक से चेंज हो जाता है. तो दीज आर सम एग्जांपल्स जिसमें वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं और उनका रिएक्शन भी अमंग अदर कोलीग्स भी शो हो रहा होता है. मैनेजमेंट के साथ भी उनका वो रिएक्शन ये कह लें कि आ रहा होता है, हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती हैं और डीलिंग करते वक्त भी ये इश्यूज उनको बॉदर कर रहे होते हैं. So I think this session will help them understand their own emotions, or I think we can also collaborate further कि हम इनको further train कर सकें इसमें. So thank you so much, Adil, once again. You're absolutely welcome. Pleasure meeting you, Shahroz. Thank you, Shahroz. I'd also like to invite Dr. Rubina Kitwai to add to the closing remarks. She is the CEO of the Skin Health Initiative, which is a co-secretariat of the Pakistan Mental Health Coalition. Thank you, Hafsa. Thank you so much, Mrs. Syed Adil Akhtar. This was an extremely informative, very insightful, very interesting session. It started, I thought that initially was very technical, but the way you opened it up, the way it unfolded, and the way it felt so relevant for all of us, and you touched upon helping others, you touched upon leadership and decision making, you touched upon taking care of one's own self, which I think is the core of everything that we do. The better we take care of ourselves, the better we can function in the world and be around for others. So I also want to thank every participant that is here for your questions, for your time, for your reflections. I saw a lot of engagement, and that reflects upon your way of presenting, Adil, and also our participants who really came fully present to take best advantage of this session. I want to say, I'm a clinical psychologist. I've had therapy practice for 22 years, and I'm also walking away with some very specific pieces of information that were either new to me or things that I had known, but I hadn't realized it by now. Abu theory mein, concepts mein, concrete ho gaye hain. You talked about self-awareness, self-knowledge, जो कि हम कहें कि हमारे मजहब में भी कहते हैं इसने अपने आप को जाना, आपने खुदा को जाना. Meaning the value of knowing one's own self is central to who we are. And emotions, some like emotions, एक बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ जाता है, इंसान जाता है तो उसके इर्द गिर्द लोग रो रहे होते हैं. But we don't stop to reflect on emotions.
and how beautifully you talked today, and you know, emotion versus feeling, and not clamping down the emotion but managing your reaction. ये बहुत maturity की भी बातें हैं, बहुत personal growth वाली बातें हैं, and I know and I'm very confident that people are walking here with thoughts, tools, ideas that we will build upon in time to come. And I agree with Sheroz. I think all the information you presented today, probably इसमें से टुकड़े निकाल के अलग-अलग pieces of presentation हो सकती है, be very useful. We work in the area of mental health, but it is a multi-sectoral group. But the information you shared will be helpful in all spaces. So once again, as the co-secretariat of Pakistan Mental Health Coalition, on behalf of the scheme and the British Asian Trust, I believe mental health cannot be addressed in isolation. You represent a different sector, and you were here talking to us about emotions in a way that are relevant to all of us, the core of our heart. So, thanking you once again, thanking all the participants. Thank you for being here. And I know you're walking away with some concrete ideas and tools from Adil's talk. And may we all be well and take care of ourselves. Thank you so much. Thank Thank you, you very Dr. much for your Rubina. kind words, Rubina. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Hafiz. Allah Hafiz. So, just a couple of quick reminders for everyone. The post-webinar form link, I think Asra has shared it in the chat. So please do fill it out, as it is required for your certificate if you want one. The recording will be shared with all registered participants, I think, by next week. And if you would like to stay connected to the work that we're doing, please हमारी website पे जाएं, वहाँ पे आप member register कर लें. उसकी भी link chat में असरा share कर रही हैं. Thank you so much to Adil, to SIEHS, to SERS, to every one of you for being here today. And I think हम सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं. And I just want to check Dr. Abid ने क्या join किया है या वो अभी नहीं है? नहीं. Okay, great. Then we'll reconnect with him afterwards. And any questions that you have, you can reach out to us over the channels that we've shared. We will be sharing the answers to the questions that were shared in this webinar here today as well. I think that's it. Thank you so much, everyone. Inshallah, next session में आपसे मिलते हैं. Hafiz. Thank you, Thank you. Thank you, Dr. Talha. Thank you so much. Asra, for Thank you so much, organizing Adil sir. everything. Thank you. You're absolutely welcome. Good to see you after a long time. Thank you.